السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ ریکویسٹڈ ہے، تو زیادہ تر آپ لوگ کی ریکویسٹ آ رہی ہے کہ کوہستانی بھائی کے چینل سے ہی ویڈیوز پر میں ریئیکشن دوں۔ تو آج میں نے جو ویڈیو لیا ہے وہ ہے دا بلینئر صحابی، تو ٹائٹل یہ ہے اور ویڈیو آگے دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کیسا ہوتا ہے۔ مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ زیادہ تر میں نے اپنے چینل پر کوہستانی بھائی کی ویڈیوز پر ہی ریئیکشن دیا ہے، نیو چینل ہے اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی کاپی رائٹ وغیرہ نہ آ جائے، لیکن زیادہ تر آپ لوگ کامنٹ کرتے ہیں کہ انہی کی ویڈیو پر میں ریئیکشن دوں، تو میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ انہی کی ویڈیو پر ہی میں ریئیکشن دوں تاکہ آپ لوگ کی ریکویسٹ پوری کر سکوں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 10 سال کی خلافت کے بعد حضرت عمر دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے وفات کے صرف 3 دن بعد حضرت عثمان مسلمانوں کے نئے خلیفہ بنے، جو ایک بڑے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں سے بھی تھے۔ جس کے بعد حضرت عثمان 12 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو ایک قرآن پر یونائٹ کیا، اسلام کی پہلی کرنسی بنائی، مکہ اور مدینہ کی مسجدوں کو ایکسٹینڈ کیا، جو آج تک جاری ہے۔ لیکن خلافت کی سب سے پہلی اور بڑی بغاوت بھی حضرت عثمان کے دور میں ہی ہوئی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سب کے بعد بھی لوگ باقی 2 خلیفاؤں کے بارے میں تو بہت جانتے ہیں، لیکن حضرت عثمان کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عثمان کی سٹوری بہت ہی انسپائرنگ ہے، کیونکہ حضرت عثمان خلیفہ بننے سے بہت سال پہلے مکہ کے کسی عام گھر میں نہیں، بلکہ مکہ کے سب سے رچ خاندان بنو امیہ میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد عفان کا مکہ میں کپڑوں کا بہت بڑا بزنس تھا، جو مکہ سے باہر روم اور یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ لیکن اچانک ایک دن جب حضرت عثمان کی ایج بہت ہی کم تھی، ان کے والد عفان کسی سفر سے واپس آتے ہوئے فوت ہو گئے۔ فوت ہونے سے پہلے عفان کے 2 ہی بچے تھے، بیٹا عثمان اور بیٹی آمنہ۔ اسلام سے پہلے عرب کا سسٹم یہ تھا کہ باپ کے مرتے ہی سارا کا سارا مال اس کے بیٹے کی طرف جاتا تھا اور بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اسی لیے آف کورس عفان کا پورا بزنس اور سارا مال بہت ہی کم ایج میں حضرت عثمان کو ملا، جس کی وجہ سے بہت ہی کم ایج میں حضرت عثمان مکہ کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک بنے۔ اسی لیے مکہ کے سارے جوان لڑکے حضرت عثمان کو ایک رول ماڈل کی طرح دیکھتے تھے۔ اتنا زیادہ پیسہ ہونے کے بعد بھی حضرت عثمان نے مکہ کے باقی شہزادوں کی طرح ایک عیاشی کی زندگی گزارنے کے بجائے اپنے خاندان کے بزنس پر فوکس کیا اور اسے ایک انٹرنیشنل بزنس بنایا۔ اپنے اسی بزنس کی وجہ سے حضرت عثمان مکہ میں اتنے فیمس ہوئے کہ مکہ کی مائیں اپنے بچوں سے کہا کرتی تھی کہ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی قریش عثمان سے کرتے ہیں۔ اب جب حضرت عثمان مکہ میں اپنے کپڑوں کا بزنس کر رہے تھے، وہاں ایٹ دا سیم ٹائم ایک دوسرے آدمی کا بزنس بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہی سے ان 2 گریٹ صحابہ کی دوستی شروع ہوئی۔ ناؤ جب حضرت عثمان کا بزنس مکہ میں اپنی پیک پر تھا، ایگزیکٹ اسی ٹائم مکہ کے ایک غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ Muhammad, read. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بعد سب سے پہلے اسلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، اور اسلام قبول کرتے وہ سیدھا اپنے دوست عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بھی اسلام کی طرف لے کر آئے۔ حضرت عثمان، جنہیں مکہ کے جوان اپنا رول ماڈل سمجھتے تھے، ان کا اسلام قبول کرنا پورے مکہ اور اسپیشلی ان کے خاندان بنو امیہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ حضرت عثمان کے بعد سب کو اس بات کا پتا تھا کہ اب مسلمانوں کو پیسوں کی زیادہ کمی نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت عثمان بنو امیہ کے پہلے اور اکیلے شخص تھے جنہوں نے اپنے خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کیا تھا۔
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने लगे तो पहले पहले लोगों का ख्याल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ सिर्फ अपने खानदान बनु हाशिम को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए लोग इस्लाम को सिर्फ एक कबीले का रिलीजन समझते थे। लेकिन अचानक एक दिन कुरान की एक सूरत नाजिल हुई, सूरह मसद, जिसमें अल्लाह ने मक्का के सारे लोगों को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब और उसकी बीवी के लिए बहुत ही सख्त अल्फाज यूज किए, ताकि इन आयतों की वजह से सबको पता चल जाए कि इस्लाम किसी खानदान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन अब मसला यह था, जिस चचा के बारे में कुरान की ये आयत नाजिल हुई थी उसी के 2 बेटों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का निकाह हो चुका था। तो अब जब इन आयत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब और उसकी बीवी को पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेने के लिए अपने बेटों को हुक्म दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दें। अब जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह देखा कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोर करने के लिए उनकी बेटियों को तलाक दिया गया, तो वो सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और उनसे उनकी बेटी रुकैया का हाथ मांगा। इस तरह हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीब हो गए। ये देखकर उनका खानदान बनु उमैया आखिर और बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि ये बनु उमैया के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। तो अब बिल्कुल बाकी मुसलमानों की तरह बनु उमैया भी हजरत उस्मान जैसे पावरफुल इंसान पर जुल्म करने लगे। कहा जाता है कि उनके एक चचा हाकम उन्हें रस्सियों से बांधकर मारा करते थे और उनका पूरा खानदान उन्हें इस्लाम छोड़ने का कहता रहता था। लेकिन हजरत उस्मान इस सब के बाद भी अपने खानदान के खिलाफ जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। इसके कुछ ही अरसे बाद मक्का में आखिर एक ऐसा टाइम आया कि अब कुछ मुसलमान अब और यहां नहीं रह सकते थे, क्योंकि अब मक्का वालों ने मक्का के 2 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो अरब को छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत करें, जहां एक नेक बादशाह उनकी जरूर मदद करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म के बाद हजरत उस्मान अपनी बीवी रुकैया और कुछ और मुसलमानों के साथ अरब को छोड़कर इथियोपिया मतलब हबशा की तरफ चले गए और वहां जाकर अगेन हजरत उस्मान ने अपनी बिजनेस की नॉलेज को यूज करके एक नया बिजनेस स्टैब्लिश किया। अब जब हजरत उस्मान यहां हबशा में थे, वहां मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान का बायकॉट करके उन पर बहुत जुल्म किया। लेकिन हजरत उस्मान मक्का से बहुत दूर होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं कर सके। 4 साल हबशा में गुजारने के बाद अचानक हबशा में एक अफवाह फैली कि मक्का के सारे लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनकर हजरत उस्मान और बाकी मुसलमान हबशा छोड़कर वापस मक्का की तरफ आए। लेकिन यहां आकर उन्होंने देखा कि ये सब कुछ बिल्कुल झूठ था। लेकिन अब मक्का से वापस हबशा जाने के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। अब मदीना मक्का से बिल्कुल ऑपोजिट एक बहुत ही गरीब इलाका था और वहां पर मुसलमानों के हालात इतने खराब थे कि उन्हें पीने के लिए पानी भी अवेलेबल नहीं था। यह देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के सारे मुसलमानों को जमा किया और उनसे कहा कि जो भी मुसलमान उस यहूदी से ये कुआं बेर रोमा खरीद कर मुसलमानों के लिए खोल देगा, उसकी जगह जन्नत में होगी। अब मदीना में ऑफ कोर्स कोई भी ऐसा नहीं था जो इतने सख्त हालात में इस कुएं को अफोर्ड कर सकता हो। लेकिन सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसका बिजनेस शाम, यमन और अब हबशा तक फैला हुआ था, हजरत उस्मान। हजरत उस्मान सीधा उस यहूदी के पास गए, लेकिन उस यहूदी ने कहा कि मैं ये कुआं नहीं बेचना चाहता, क्योंकि इस कुएं के पानी पर उसने टैक्स लगाया था और इस पानी को बहुत महंगा बेचता था। तो हजरत उस्मान ने इस यहूदी के साथ एक डील की और उससे आधा कुआं खरीदा। मतलब एक दिन ये कुआं हजरत उस्मान का होगा और एक दिन यहूदी का। उस यहूदी ने ये ऑफर खुशी से एक्सेप्ट कर ली। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चल गया कि ये उसने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जिस दिन ये कुआं हजरत उस्मान के पास होता था, उस दिन मदीना के सारे लोग आकर इस कुएं से पानी भरकर ले जाते थे
और अगले दिन यहूदी के पास कोई भी पानी लेने के लिए नहीं आता था। मतलब इस कुएं से यहूदी की कमाई बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो इस यहूदी ने हजरत उस्मान के पास आकर मजबूरन उन्हें सारा कुआं बेच दिया और इस तरह हजरत उस्मान ने 20,000 दरहम में ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए डोनेट कर दिया। ये हजरत उस्मान की इतनी बड़ी डोनेशन थी कि इसे आज तक पूरी दुनिया याद करती है, क्योंकि ये कुआं और इसके पास जमीन आज तक हजरत उस्मान के नाम पर सऊदी अरब में रजिस्टर्ड है। और इस कुएं और इसके आसपास जमीन से जितनी इनकम आती है उससे हजरत उस्मान के नाम पर ही मदीना में एक बहुत बड़ा होटल बनाया गया है। ये होटल हर साल हजरत उस्मान के नाम पर 50 मिलियन रियाल कमाता है, 5 करोड़ रियाल, जो ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए बनते हैं, जिसे पूरा का पूरा गरीबों में तकसीम कर दिया जाता है। मतलब हजरत उस्मान वाहिद सहाबी है जिनके नाम से आज तक अल्लाह की राह में करोड़ों दिए जाते हैं। ये कुआं खरीदने के कुछ ही अरसे बाद इस्लाम की पहली जंग का टाइम आया, जंगे बदर, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से 313 मुसलमानों की फौज लेकर बदर की तरफ रवाना हुए। लेकिन मसला यह था कि हजरत उस्मान मुसलमानों की इस फौज में नहीं थे, क्योंकि उनकी बीवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया की तबीयत बहुत खराब थी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को मदीना में रहने का हुक्म दिया। लेकिन अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान जंगे बदर लड़ने में बिजी थे, वहां उनकी बेटी रुकैया की तबीयत बहुत खराब हुई और वो इस दुनिया से चली गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर जीतकर वापस मदीना पहुंचे तो मुसलमान बहुत खुश थे और जंग जीतने का जश्न मना रहे थे। लेकिन उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बेटी रुकैया की मौत की खबर दी गई, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जीत के दिन भी बहुत दुख हुआ। रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मौत के बाद मदीना के लोगों ने देखा कि हजरत उस्मान बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगे, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रुकैया की मौत का दुख तो मुझे है ही, लेकिन मुझे इस बात का भी गम है कि उनके जाने के बाद मेरा रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टूट चुका है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कलसूम की शादी भी हजरत उस्मान से कराई, जिसके बाद हजरत उस्मान का नाम जुन्नुरैन पड़ा, मतलब 2 नूरों वाला। बदर की जंग ऐसा एक ही इवेंट था जिसमें हजरत उस्मान मुसलमानों के साथ शामिल नहीं थे, क्योंकि बदर के बाद हजरत उस्मान इस्लाम की हर बड़ी जंग, ओहद और खंदक जैसी बड़ी जंगों में शामिल थे। और इसके बाद आया हजरत उस्मान की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कि जब खंदक की जंग के बाद मुसलमान मदीना से उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए। जैसे ही मुसलमान मक्का के करीब पहुंचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को हुक्म दिया कि जाओ और मक्का के लीडर अबू सुफियान से बात करो कि हम किसी जंग के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं। ये सुनकर हजरत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरा खानदान मक्का में इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो मेरी हिफाजत कर सके। आप मेरी जगह उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजें, क्योंकि उनका खानदान बनु उमैया है, जिनसे इस वक्त मक्का में कोई भी ताकतवर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बात पसंद आई और उन्होंने हजरत उमर को छोड़कर इस इतनी इंपॉर्टेंट डील के लिए हजरत उस्मान को भेजा। अब जब हजरत उस्मान मक्का की तरफ चले गए तो लोगों ने यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है हजरत उस्मान सबसे पहले जाकर काबा का तवाफ करके वापस आ जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना मैं उस्मान को जानता हूं वो मुझसे पहले कभी भी तवाफ नहीं करेगा। जैसे ही हजरत उस्मान मक्का पहुंचे, वहां एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मक्का वालों ने हजरत उस्मान से कहा कि आप बाकी मुसलमानों को छोड़े, आप बड़े खानदान से हैं और खुद काबा का तवाफ करके वापस चले जाएं। लेकिन हजरत उस्मान ने उन्हें कहा कि मैं कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तवाफ नहीं करूंगा।
अब मक्का वाले मुसलमानों को बस तकलीफ देने के लिए हजरत उस्मान के साथ इस डील को डिले करने लगे, जिसकी वजह से हजरत उस्मान कई दिन तक मक्का में ही रहे। अचानक वहां मुसलमानों के कैंप में ये अफवाह फैली कि मक्का वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेंजर उस्मान को शहीद कर दिया है, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तौहीन थी जिसे एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल था। अब तक मुसलमान किसी जंग के लिए तो नहीं आए थे, लेकिन मक्का वालों की इस हरकत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी और मुसलमानों से एक दरख्त के नीचे बैत लेना शुरू की कि हम अपने खून के आखिरी कतरे तक हजरत उस्मान के बदले के लिए मक्का वालों से लड़ेंगे। जिसके बाद सारे मुसलमानों ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ दूसरे हाथ पर रखकर उनकी तरफ से भी बैत की। मतलब मुसलमानों की पूरी फौज हजरत उस्मान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। लेकिन यह जंग कभी हुई नहीं, क्योंकि ये एक झूठी अफवाह थी और हजरत उस्मान बिल्कुल सही सलामत वापस आकर मुसलमानों के साथ शामिल हुए। इस बैत को बैतुर रिजवान कहा जाता है और ये इतनी इंपॉर्टेंट बैत थी कि जिस दरख्त के नीचे मुसलमानों ने बैत की थी उस दरख्त का जिक्र कुरान में भी हुआ है। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इस सब से बहुत साल बाद हजरत उमर की खिलाफत में जब भी मुसलमान हज करने आते थे वो इस दरख्त के पास जाकर भी हाजिरी लगाते थे, जो एक ऐसा काम था जिसका इस्लाम में कोई जिक्र नहीं है। और हजरत उमर नहीं चाहते थे कि मुसलमान इस्लाम में नए नए रिवाज बनाए, तो हजरत उमर ने अपनी खिलाफत में हुक्म दिया कि इस दरख्त को काट दिया जाए। इसीलिए आज तक किसी को नहीं पता कि वो दरख्त आखिर कहां पर था। इसके बाद हजरत उस्मान की मदीना में इतनी अहमियत थी कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी छोटी जंग पर मदीना से कहीं दूर चले गए और जाने से पहले उन्होंने अपनी जगह मदीना का लीडर हजरत उस्मान को बनाया। इसके बाद इस्लाम के हर इवेंट में हजरत उस्मान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी रहे। खैबर, फतेह मक्का, हुनैन, इन सारी जंगों के बाद आखिर एक ऐसी जंग आई जिसकी वजह से आज तक हजरत उस्मान को याद किया जाता है। इसी तरह इस्लाम पूरे अरब में फैल गया और अब मुसलमानों की जंग सीधा उस वक्त की सुपर पावर रोमन एम्पायर से होने लगी। लेकिन रोमन एम्पायर से लड़ना कोई आसान काम नहीं था। उसके लिए मुसलमानों को बहुत ज्यादा माल और ताकत की जरूरत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे तबूक के लिए मुसलमानों की 30,000 की फौज जमा की। तो अब 30,000 की फौज को मैनेज करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी मुसलमान उम्मत से अपील की कि जिससे जितना हो सके इस फौज की मदद के लिए खर्च करे, और जो भी इस फौज की अपने माल से मदद करेगा इसके बदले में उसे जन्नत मिलेगी। ये सुनकर हजरत अबू बकर ने अपने घर का सारा सामान लाकर डोनेट कर दिया। हजरत उमर ने अपने घर का आधा सामान, मुसलमान औरतों ने अपने जेवर, और इवन एक गरीब सहाबी ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ खजूर लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए, जिससे ऑफ कोर्स मुसलमानों की फौज को फायदा तो हुआ। लेकिन असल में इस पूरी फौज के पीछे सबसे ज्यादा फंडिंग सिर्फ एक ही सहाबी की थी, हजरत उस्मान। जब मुसलमान हर तरफ से तबूक की जंग के लिए जमा होने लगे तो हजरत उस्मान ने उनके लिए सबसे पहले 1000 ऊंट, 70 घोड़े, 10,000 गोल्ड कॉइन्स, 70,000 सिल्वर कॉइन्स, ये सब मुसलमानों की फौज को डोनेट कर दिए, जिसका अगर आज हिसाब लगाया जाए तो ये बिलियंस ऑफ रुपीस बनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सिक्कों को अपने हाथ में पकड़कर कहा, आज के बाद उस्मान जो भी करे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। हजरत उस्मान और बाकी मुसलमानों की मदद से मुसलमानों की फौज मदीना से रोमन एम्पायर की तरफ रवाना हुई। लेकिन यह फौज इतनी बड़ी थी कि सिर्फ इसके खाने पीने का खर्चा भी बहुत बड़ा था, और कुछ ही दिनों बाद इस फौज के खाने पीने का सामान खत्म होने लगा और लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मदद के लिए देखने लगे। ये देखकर हजरत उस्मान फुल स्पीड गए और एक बार फिर कई ऊंटों को खाने पीने की चीजों से भरकर
मुसलमानों की फौज की तरफ लेकर आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान के इस काफिले को दूर से आता हुआ देखा तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने लोगों से कहा कि वो देखो, तुम्हारी मदद के लिए सुर्ख ऊंट सामान ला रहे हैं। और जैसे ये काफिला पहुंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, मैं उस्मान से खुश हूं और आप भी उस्मान से राजी हूं। अब मसला यह था कि जैसे ही मुसलमान तबूक की जंग के लिए पहुंचे, रोमन एम्पायर की फौज पहले ही वहां से भाग चुकी थी, मतलब कोई जंग हुई ही नहीं। तो अब चाहिए तो यह था कि हजरत उस्मान अपना सारा डोनेट किया हुआ माल मुसलमानों की फौज से वापस ले लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जंग ना होने के बावजूद भी अपना यह सारा माल मदीना की रियासत को डोनेट कर दिया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी दिन तक हजरत उस्मान से खुश रहे। इसीलिए उनकी वफात के बाद इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत उस्मान को अपना बड़ा मिनिस्टर बनाया और हजरत उस्मान उसी तरह अपने बिजनेसेस की ताकत से मुसलमानों की इस खिलाफत को सपोर्ट करते रहे। जिसके बाद हजरत उमर की खिलाफत में भी हजरत उस्मान उनके सबसे बड़े मिनिस्टर्स में से रहे। लेकिन जैसे ही हजरत उमर की शहादत के बाद हजरत उस्मान मुसलमानों के खलीफा बने, रोमन और पर्शियन एम्पायर के बादशाहों को समझ आ गई कि यही टाइम है मुसलमानों की इस खिलाफत को खत्म करने का, और उन्होंने मुसलमानों की इस खिलाफत पर हर तरफ से हमला कर दिया। तो अब हजरत उस्मान ने यह प्रूव करना था कि वो हजरत उमर की इस इतनी बड़ी खिलाफत को डिफेंड कर सकते हैं या नहीं। सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये थे हमारे प्यारे नबी के दामाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि बहुत ही मालदार थे, बहुत ही दौलत थी उनके पास। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत दौलत से नवाजा था और उन्होंने अपने माल को, अपनी दौलत को दीन की राह पे ख़र्च किया, मुसलमानों पर ख़र्च किया, इस्लाम की राह में ख़र्च किया। और हमारे प्यारे नबी ने अपनी बेटी का निकाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ किया था। उनकी बेटी रुक़ैया का निकाह, जब रुक़ैया का इंतकाल हो गया उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी बेटी का निकाह भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कर दिया था। वो भी इसलिए क्योंकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत दुखी हुए थे इस बात से कि रुक़ैया के इंतकाल के बाद उनका रिश्ता हमारे नबी के साथ टूट गया था, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी दूसरी बेटी का निकाह भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कर दिया था। तो ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।